وہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ شام سے ہی سردی بڑھنے لگی اور ہوا میں تیزی آ گئی۔ خشک پتے اڑ اڑ کر درختوں سے لپٹ رہے تھے۔ ہر چیز اندھیرے کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک گھنے درخت کے نیچے سے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ یہ سایہ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکلتے ہی آسمان پر بجلی لپکی اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس میں وہ بھیگنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ میدان میں آیا تو بری طرح بھیگ چکا تھا۔ سرد رات، بھیانک تاریکی، موسلا دھار بارش، سائیں سائیں کرتی ہوئی بادلوں کی گھن گرج اور جنگل کا شور، سب مل کر ماحول کو بہت دہشت ناک بنا رہے تھے کہ انسان اپنی دل کی دھڑکن سن کر بھی ڈر جائے۔ اجنبی کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ چاروں طرف کسی ٹھکانے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا کہ ایک دم سے زور سے بجلی چمکی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف لپکتے ہوئے شعلے کو دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگیں۔ لمحہ بھر کی روشنی میں اسے دور ایک عمارت نظر آئی اور وہ تیزی سے اس سمت دوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس عظیم الشان عمارت کے کھنڈر دکھائی دینے لگے۔ تاریک رات میں یہ کھنڈر کافی پراسرار نظر آ رہے تھے۔ پراسرار حویلیوں کے بھوت، جنوں کے ویران مسکن، پراسرار اور ویران جگہوں پر روحوں اور چڑیلوں کی موجودگی، یہ تمام خیالات اسے ڈرائے دے رہے تھے۔ کھنڈر کے پاس پہنچنے پر وہ اندر داخل ہونے کے بجائے وہیں رک کر اسے باہر سے دیکھنے لگا۔ یہ پرانے وقتوں کی کسی حویلی کے کھنڈر تھے جن کا بیشتر حصہ اب تباہ ہو چکا تھا۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی جس کی نچلی منزل کے کچھ حصے تو اچھی حالت میں موجود تھے، مگر اوپری منزل کی گری ہوئی دیواریں، ملبے کے ڈھیر اور ان کے ساتھ ٹکے ہوئے ستونوں کے ٹکڑوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سب ملبے کے ڈھیر ہیں یا کوئی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں۔ حویلی کے ارد گرد کبھی جنگل رہا ہوگا جس کے اب صرف آثار باقی تھے۔ اس کے اندر کچھ ٹنڈ منڈ سے ویران درخت تھے، جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی تھیں اور زرد اور سیاہ رنگ کے پتے بکھرے تھے۔ درمیان میں ایک تالاب تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پر سبز کائی کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ تالاب کے کناروں پر اور ارد گرد بھی جگہ جگہ کائی پڑی تھی جو بارش سے پہلے یقیناً ایک دبیر تہ کی صورت میں تالاب کے فرش پر موجود رہی ہوگی اور اب بارش سے صاف ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھیں جن کی مناسبت سے خوفناک بلاؤں، بھوتوں اور روحوں کے حولے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے، اور وہ بھی اندر جانے کی ہمت کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک دھکا سا لگا اور وہ لکھڑا کر باہر آ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا تو جنگل کی طرف سے آتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک دفعہ پھر دہلا دیا۔ وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ حویلی کے اسرار میں وہ اس بھیانک رات اور موسم کو بھول چکا تھا۔ آندھی کے آثار بہت واضح ہو چکے تھے اور اب وہ زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ داخلی دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ 2 کمروں سے گزر کر وہ ایک ہال میں آ گیا۔ پتھروں سے بنی ہوئی چھت اور دیواریں اب سیاہ پڑ چکی تھی۔ ہال کی مشرقی دیوار میں ایک آتش دان بنا تھا جس کے اندر ارد گرد کافی تعداد میں سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں اور ساتھ ہی چکماک کے پتھر بھی پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ حویلی پہلے بھی کسی کی پناہ گاہ ہو۔ اس نے اپنا بیگ جس میں کافی قیمتی سامان موجود تھا کاندھے سے اتار کر ایک کونے میں رکھا، لکڑیاں اور چکماک کے پتھر اٹھائے اور ہال کے وسط میں آگ روشن کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے خشک کرنے لگا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے۔ وہ دونوں بھی اس رات اور موسم سے پناہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے۔ اب سامنے 2 انسانوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے کہنے پر دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا سامان اس کے سامان کے ساتھ رکھ دیا اور آ کر اس کے ساتھ آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ایک سیاح ہوں۔ ایک خوبصورت گاؤں میں شام گزارنے کے بعد وہاں سے چلا تھا کہ جنگل میں بھٹک گیا اور پھر اس آندھی سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لے لی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میرا نام احسان ہے، میں ایک شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک دم سے موسم خراب ہو گیا۔ کوئی جگہ سر چھپانے کی ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگل کے کنارے مجھے یہ شخص بھی پریشان حالت مل گیا اور یوں ہم دونوں بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچ گئے، اور اس افراتفری میں بھی ہمارا ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں ہوا۔ دونوں آدمیوں میں سے لمبے قد والا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر دوسرے چھوٹے قد والے نے بولنا شروع کیا، میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں، میرا نام ذیشان ہے اور میں بہت پرانی تباہ شدہ بستیوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ ابھی تینوں آگے کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک کھٹکا سا ہوا۔
तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक गैर मामूली तौर पर लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तमाम जज्बात से आरी था। वो बड़े इत्मीनान के साथ चलता हुआ उनके करीब आया। लो भाई, एक और मुसाफिर आ गया। आज खूब महफिल जमेगी इस वीराने में। एहसान ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। फरहान और ज़ीशान भी मुस्कुरा दिए, मगर नौवारद चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था। वो भी उनके साथ बैठ गया। अपना बैग कांधे से उतार कर उसने अपने पास रख लिया और हाथ सेंकने लगा। उसके खामोश रहने पर उन तीनों ने अपना तारुफ करवाया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने बिल्ली जैसी चमकती आंखें आग के अलाव पर से हटाई, एक तायराना नज़र तीनों पर डाली और बोला, दोस्तों, मेरा तारुफ कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरा कोई शनाख्ती नहीं, एक आवारा सा आदमी हूँ। असल नाम तो याद नहीं, लेकिन लोग मुझे मरहूम कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर उसने एक मर्तबा फिर अपनी निगाहें आग पर जमा दी। तीनों हैरत से उसे देखने लगे। कितना अजीब सा नाम था, खुद भी कितना अजीब था। उन सब को वो बहुत पुरस्कार लगा। ज़ीशान, जिसके बिल्कुल साथ वो अजनबी आकर बैठ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में न जाने क्यों सनसनाहट सी होने लगी। वो खिसक कर उससे ज़रा दूर हो गया। उसी वक़्त एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और फिज़ा में अजीब सी आवाज़ें बिखरने लगी। हाल की खिड़की के दोनों पट बुरी तरह आपस में टकराए और एक चमगादड़ चीखती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। वो एक लम्हे को कांप से गए। सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा हो गया था। ये आवाज़ें जंगली जानवरों की है। लगता है आंधी बहुत ज़ोर पकड़ गई है। एहसान ने बाहर की आवाज़ों को गौर से सुनते हुए कहा, उफ तौबा, कितनी भयानक रात है। फरहान ने हाथ आग के करीब ले जाकर मसलते हुए कहा, मगर आप लोगों के लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होने चाहिए। चौथे मुसाफिर की आवाज़ कमरे में गूंजी तो तीनों हैरत से उसे देखने लगे। मेरा मतलब है, एक शिकारी, एक सयाह और एक माहिर आसावरे के दीवां। आपकी ढलती हुई उम्रें और कीमती सामान वगैरह से अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी और आपके साथ कितने दिलचस्प वाक़यात पेश आए होंगे, ख़ुसूसन 14वीं की रात के हवाले से, जो ऐसे खौफनाक वाक़यात के लिए मशहूर है। हाँ, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। मेरी ज़िंदगी बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है। ज़ीशान ने उसकी बात सुनकर फ़ख्र से कहा, भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको इसी रात के हवाले से एक खौफनाक वाक़या सुना सकता हूँ, जो यकीनन आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। फरहान ने कहा, यह ठीक रहेगा। हम चारों बारी बारी अपने साथ पेश आया कोई वाक़या सुनाएंगे। इस तरह वक्त भी दिलचस्पी से कटेगा और इस भयानक रात का एहसास भी कम होगा। फरहान की तजवीज़ को सब ने सराहा और यूं सबसे पहले फरहान ने कहना शुरू किया, ये चंद साल पहले की बात है। यहाँ से काफ़ी दूर एक कस्बा है, नूरियाबाद। मैं चंद दिनों के लिए वहाँ गया। वहाँ के एक लोग बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का जिक्र करते थे, जिसके साथ बहुत सी पुरस्कार बातें मंसूब थीं। दरख्तों के एक तवील सिलसिले की दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान था, मगर वहाँ जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। लोगों से सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ उसके बारे में जानने का। मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा इरादा रात के वक्त सिर्फ बाहर से खड़े होकर उसे देखने का था। मैंने अपना कैमरा और दूसरा सामान लिया। इसी रात 14वीं के चांद की रोशनी भी अच्छी खासी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं काफ़ी देर चलता रहा। दरख्तों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी थीं। रंगो रूप से बेनियाज टुंड मुंड दरख्त खड़े झूम रहे थे। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। फिज़ा में एक वहशतनाक सी वीरानी छाई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दरख्तों की खोखली टहनियों पर से जब हवा गुजरती तो अजीब सी सनसनाहट होती, जो सरसराती हुई जंगली घास और झाड़ियों के साथ मिलकर बड़ा खौफनाक तासुर देती। और इसमें कोई और वहशत के आलम में चीखता तो दिल दहल जाता। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था कि मुझ पर एक निहायत खौफनाक इंकशाफ हुआ, जिसने मेरे रहे सहे होश उड़ा दिए। मैं जिसे मैदान समझ रहा था वो असल कब्रिस्तान था। बहुत वक्त गुजरने की वजह से कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थी, कतबे गिर चुके थे और उन पर मिट्टी की इतनी तह जम चुकी थी कि वो मिट्टी का हिस्सा मालूम होते। दरख्त भी सब वीरान हो चुके थे और जंगली घास और झाड़ियों ने ज़्यादातर ज़मीन को छुपा रखा था। ऐसे में संगे मर के एक कतबे पर, जिस पर मिट्टी की तह जमी थी, मगर वो गिरा नहीं था बल्कि ज़मीन में गड़ा हुआ था, नज़र पड़ते ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान के दरमियान में आधी रात के वक्त अकेला खड़ा हूँ। खौफ के मारे मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, मगर फौरन ही मिट्टी में छुपे हुए एक कतबे से ठोकर खाकर ज़ोर से फिज़ा में उछला तो ज़मीन पर आ रहा। कुछ देर मैं यूं ही पड़ा रहा। फिर मैंने आंखें खोली तो एक और खौफनाक इंकशाफ मुझ पर हुआ कि मैं इस वक्त
एक कब्र के अंदर गोश्त पोश से बे नियाज हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर लेटा था। मेरे तो रहे सहे औसान भी खता हो गए। हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खौफ और सर्दी के मारे सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया और खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। मैंने उठने की कोशिश की तो एक तेज चीख मेरे हलक से निकल गई। ढांचे के बाजू मेरी कमर के गिर्द लिपटे थे। उनका हल्का तंग होने लगा और बारीक बारीक उंगलियां खाल में उतरती महसूस होने लगी। पूरे जिस्म में टीसें उठने लगी। एक तो इस रूह फरसा वीरानी ने मुझ पर दहशत तारी कर रखी थी, ऊपर से इस नई मुसीबत ने मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया और बेसुध पड़ा रहा। उस वक़्त मैंने महसूस किया कि कब्र के अंदर आती हुई चांद की रोशनी कम होती जा रही है। पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और कब्र का दहाना बंद हो रहा था। मेरे दिमाग में जैसे घंटियां सी बजने लगी, यानी मैं जिंदा कब्र में दफन हो रहा था। मैंने आखिरी दफ़ा तमाम हिम्मत जमा की और पूरा जोर लगाया। कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ ढांचे के बाजू शाने की हड्डियों से अलग हो गए। मैं तेज़ी से खड़ा हुआ और कब्र के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखता हुआ अपने पूरे जिस्म को बाहर उछाल दिया। मेरा जिस्म पत्थर की सिल के साथ रगड़ खाता हुआ बाहर गिर गया। मेरे बाहर निकलते ही सिल ने कब्र के मुंह को पूरी तरह ढांप लिया। यकायक हवा में तेज़ी आ गई, मट्टी और रेत उड़ने लगी। मैंने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे ऐसा यकीन था कि सुबह तक मट्टी कब्र को छुपा देगी और मैं दिन की रोशनी में यानी उसे दोबारा नहीं ढूंढ सकूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या था, जिसे अब भी याद करके मैं कांप जाता हूँ। फरहान ने अपना वाक़या ख़त्म किया तो एहसान और ज़ीशान दम बखुद बैठे थे। वाक़या ख़त्म होने पर उन्हें अजीब सा खौफ महसूस हुआ, मगर चौथा आदमी जिसने अपना नाम मरहूम बताया था हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसुकून था। अब ज़ीशान ने कहना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं अफ्रीका में था। मैं एक कदीम इमारत के खंडर की तलाश में था, जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत बड़ा ख़जाना दफन था, मगर अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं सका था। बहुत अरसे तक मारे मारे फिरने के बाद एक दिन अचानक एक कबायली आदमी ने मुझे वहाँ तक का रास्ता बताया, मगर साथ चलने पर तैयार नहीं हुआ। मैं अकेला ही उस तरफ चल पड़ा। वो इमारत बहुत ज़्यादा घने दरख्तों के झुंड में थी, जिस तक पहुँचने का वाहिद रास्ता एक पतली सी पगडंडी थी जो दोनों तरफ से दलदली ज़मीन में घिरी हुई थी। बड़ी दिक्कतों के बाद मैं आखिरकार उस इमारत तक पहुँचने में कामयाब हुआ। वो एक छोटी सी इमारत थी जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी और उसका दरमियाना बड़ा गुंबद काफ़ी हद तक सलामत था। उसमें जगह जगह शगाफ पड़े थे, मगर वो अभी इमारत की शिकस्ता दीवारों पर टिका हुआ था। वहाँ तक पहुँचने में सूरज गुरूब हो चुका था और दरख्तों के झुंड की वजह से चांद भी उसे मनोवर करने में नाकाम था। मैंने कबायली आदमी की दी हुई मशल जलाई और सदरी दरवाजे से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा तो वहाँ मौजूद था, अलबत्ता एक खलासा था। अंदर का माहौल बड़ा वहशतनाक था। जगह जगह मकड़ी के कद आदम जाले लगे थे। छत के साथ कई चमगादड़ें उल्टी लटक रही थी। फर्श पर बेशुमार हशरात और चूहे इधर उधर रेंग रहे थे। फिर मशल की रोशनी में ये आम चीज़ें बहुत खौफनाक लग रही थी। ऊपर से फिज़ा पर फैला हुआ अजीब एसाब शिकन सन्नाटा मेरे हवास पर तारी होने लगा और मुझे वहशत सी होने लगी। एक अनजाना सा खौफ था। मेरे दिल चाहा कि वापस लौट जाऊं, मगर इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं यूं वापस नहीं जा सकता था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और कमरे से निकलकर मुल्हिका राहदारी में आ गया। राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एक तेज़ गूंजती चीख मेरे कानों से टकराई। मैं ठिठक कर रुक गया। चीख कहीं आसपास से आई थी, मगर राहदारी बिल्कुल खाली थी। अभी चीख की बाज गश्त ख़त्म भी ना हुई थी कि एक और दिलखराश चीख फिज़ा में बुलंद हुई और फिर तो ऊपर तले चीखों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। यूँ महसूस होता था जैसे इमारत के दरो दीवार हिलने लगे हों। मैं खुद यूँ कांपने लगा जैसे मेरा सारा वजूद ज़लज़ले के झटकों की जद में हो। मैं हिरासा होकर वापस भागने वाला था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के अंदर पड़े एक लंबे चौड़े संदूक पर पड़ी। ख़जाना! मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मैं हर चीज़ को भूलकर कमरे में दाखिल हो गया। संदूक का जंग खोरदा कफल टूटकर पहले ही नीचे गिर चुका था। मैंने पूरी ताकत सर्फ करके संदूक का ढकना उठाया। जैसे ही संदूक का ढकना खुला, एकदम तमाम शोर ख़त्म हो गया और फिज़ा पर एक दफ़ा फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अंदर नज़र पड़ते ही मेरी नज़रें फटी की फटी रह गईं। संदूक लबालब कदीम और कीमती जवाहरात और सोने की अशरफियों से भरा पड़ा था। अभी मैं गैर यकीनी के आलम में ये ख़जाना देख ही रहा था कि वो मंज़र मेरी नज़रों ने देखा, जो कि अब भी निगाहों के आगे आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएं।
मेरे सामने एकदम तमाम हीरे जवाहरात अशरफियाँ ऊपर उठी और फिजा में बिखर गईं। एक देव हैकल इंसान संदूक में से उठकर खड़ा हो गया। उफ तौबा, इतना खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। उसका रंग तवे की तरह काला था, आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थी। उसकी जुबान सख्ती से भेंचे हुए जबड़ों के दरमियान फंसी थी। उसके हाथ में 2 धारी तलवार थी और उसके कपड़ों पर एक मखसूस निशान बना था जो कदीम अफ्रीकी बादशाहों के मुहाफिजों के लिबासों पर होता। वो बड़ी गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था। ये मंजर देखकर सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ गया। पूरे जिस्म पर जैसे चिंटियां सी रेंगने लगी। खून रगों में जमने लगा और चेहरा रुई के गाले की तरह सफ़ेद हो गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। फिर अचानक जैसे मुझे होश आ गया और मैं उल्टे पांव वापस भागा। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह गिरता पड़ता अपने कैंप तक पहुंचा, मगर उस वक्त मैं वहां से अपना खीमा उठवा दिया और फिर शहर पहुंचकर ही दम लिया। 14वीं की वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। ज़ीशान खामोश हुआ तो फरहान और एहसान अहमद यूं बैठे जैसे उन पर सहर हो गया, मगर चौथा मुसाफिर अब भी वैसे ही नॉर्मल था। एहसान अहमद ने कहना शुरू किया, अब दोनों हजरात ने दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाए हैं। ऐसा कोई वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश नहीं आया। अलबत्ता एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने कम से कम मुझे खौफज़दा कर दिया। वो रात भी 14वीं की थी। मैं एक दरख्त के मचान पर बैठा था। सामने एक दरख्त के नीचे मैंने एक बकरी बांध रखी थी और शेर के शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। मैं बदस्तूर बकरी की तरफ देख रहा था कि एकदम पलक झपकते ही बकरी मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैंने आंखें मल मल कर देखा तो बकरी के बजाय शेर खड़ा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने अपने जिस्म में चुटकी भरी और खूब आंखें मल मल कर देखा, मगर सामने शेर ही खड़ा था और बकरी गायब थी। मेरे जिस्म के मसानों से ठंडा पसीना फूट निकला और सारा जिस्म कपकपाने लगा। मेरे हाथों में बंदूक लरजने लगी और यकदम फिसल कर नीचे गिर गई। मैं बौखलाहट में नीचे की तरफ झुका और खुद भी तवाज़न बरकरार न रख सका और नीचे आ गिरा। शेर अपनी अंगारा सी दहकती आंखों से मुझे घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरा दम निकल रहा हो। मैं बावजूद कोशिश के हरकत न कर सका। शेर जैसे ही मेरे पास पहुंचा, यकायक फिजा अनजाने कहकों से गूंज उठी और शेर देखते ही देखते धुएं में बदल गया। थोड़ी ही देर बाद आवाज़ें थम गईं और बकरी मुझे फिर दरख्त से बंधी नजर आने लगी। इसके बाद सारी रात खैर व आफियत से गुजरी, मगर वो लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक लम्हात थे। मेरा ख्याल है कि वो कोई बदरू या जिन था जो मुझे परेशान कर रहा था। एहसान अहमद ने बात ख़त्म की तो तीनों चौथे मुसाफिर की तरफ देखने लगे। बाहर अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी और आंधी का जोर भी कम पड़ गया था। चौथे मुसाफिर ने आग पर से नज़रें हटाईं और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खौफनाक वाक़यात हैं और मैं इस दौरान बहुत से लोगों से मिला हूँ, मगर चूँकि आप तीनों इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो इसलिए आपके हवाले से बात करता हूँ। दरअसल इत्तफाकन मैं भी हमेशा 14वीं की रात को ही अपनी दुनिया से बाहर निकलता हूँ। अपनी दुनिया क्या मतलब? तीनों के मुंह से एकदम हैरत के मारे निकला। अरे भाई लोगों, आप लोग खामोशी से मेरी बात सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। उसने शोलाबार निगाहों से गुस्से से तीनों को घूरा तो जैसे तीनों की जुबानों को ताले लग गए। उन्हें अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। उसने दोबारा कहना शुरू किया, ऐसी ही एक 14वीं की रात थी जब मेरी मुलाकात फरहान साहब से हुई, जब मैं एक कब्र में ढांचे की शक्ल में आराम कर रहा था। हाँ, शेर और बकरी का भेस बदलने में तो मुझे इतना लुत्फ नहीं आया, मगर मुर्दे की सूरत में ज़ीशान साहब से मुलाकात खूब थी। उसके बाद आज ही मैं इंसानों की दुनिया में आया हूँ। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका। सामने बैठे हुए तीनों आदमियों की हालत गैर होने लगी। उसके हुलिये पुरस्रार अंदाज और बातों से उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं। इस एहसास से उनके चेहरे बिल्कुल फक हो गए और पूरा जिस्म कांपने लगा, मगर अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले मैं बेवकूफ़ी करता था कि लोगों को डरा कर छोड़ दिया करता था और दूसरों को किस्से सुनाते फिरते थे लोग, मगर अब हुक्म मिला है कि किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना। उसने भी इतना ही कहा था कि वो तीनों आदमी यूं उठे जैसे उनके जिस्म में बिजली भर गई हो। उनके और सामान के दरमियान वो पुरस्रार अजनबी हायल था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामान की तरफ बढ़ते। अजनबी के खड़े होने से पहले वो तीनों पूरी रफ्तार से भागते हुए हवेली से बाहर निकलकर काफ़ी दूर जा चुके थे। वो तीनों इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने सामान की भी परवाह नहीं की। उनके जाने के बाद अजनबी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिलने लगी
उसने जोरदार कहका लगाया और सामान का जायजा लेते हुए बुड़बुड़ाने लगा। वाह मियाँ ठग, छोटे मोटे हाथ दिखाते हुए आज इस वीराने में इतना बड़ा हाथ मार लिया। उसने तेजी से सामान जमा करके एक चादर में बांधा। अब मुझे जल्दी सामान लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने सोचा और तेजी से दरवाजे से निकलकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।